Yeah, so now because Deepavali is on the corner, on 4th we have the main day of Deepavali, and like all of us know, Deepavali is such famous festival. In fact, if you talk in India, there are only two famous festival. One is Holi and another is Deepavali. And there are some more, but like out of these two also, Deepavali is one of the most famous festival. And the history of the entire Deepavali festival is actually Lord Ramayana, like that. So we'll begin with short prayers and then we'll just go ahead. Actually, what we are going to discuss today is one of the very amazing thing from scriptures, and that is life of a very great devotee of Lord Ram, that is Hanumanji, like that. So we'll just start with short prayers and then we'll continue. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namahom Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. I'll share my screen. Yeah, please let me know if all of you are able to see this slide. The most amazing life of Hanumanji, like that. Yes, Prabhu, it's visible. Yes. Perfect. Yes. Thank you. Yeah, friends. So now if you see, what we are trying to discuss today is actually the essence of Ramayana. Now I'll explain you how it is essence of Ramayana. हनुमान जी की लाइफ के बारे में स्टडी करना, रामायण का एसेंस कैसे है. Like if you see, actually speaking, the essence of Ramayana is Lord Ram, and the essence of Lord Ram is to chant the holy names of Lord Ram. Now अगर कोई आपसे पूछता है, या अगर हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, कि अगर हम किसी चीज का एसेंस देख रहे हैं ना, तो उसका एसेंस क्या होता है ना, कि जो एप्लीकेबल हो लाइफ में, लाइक दैट. नाउ एंटायर रामायण, it says about the glories of Lord Ram, Ramayana. It's a epic which describes the different activities and qualities of Lord Ram. And the essence of Ramayana is the name of Lord Ram. That is Ram, like how we say, no, Ram. And the essence of the name of Lord Ram is to chant the name Ram, like that. So now, why the life of Hanumanji is the essence of Ramayana? Because by studying the life of Hanumanji, we also can see the droplets of devotion. What actually is pure devotion to Supreme Lord Sitaram, like that. तो वो जो pure devotion है, उसका क्या nature है, how that actually works, how it is applicable in our life, and how we can actually practically apply it in our life. तो वो हम किन से सीख सकते हैं? वो हम हनुमान जी के लाइफ से सीख सकते हैं. So in one sense, the essence of Ramayana is actually the life of the great devotee of Hanuman ji, like that. And अगर आप हनुमान जी का लाइफ भी देखें ना, the highlight of the life of Hanuman ji is actually his devotion to सीताराम. Like वो आप लोगों ने वो देखा होगा ना, एक फोटो जिसमें हनुमान जी अपना जो छाती है उसको फाड़ देते हैं, और उसमें से अंदर से क्या निकलता है असलियत में? द डीटीज ऑफ सीताराम. उसमें अगर कोई देखेगा हनुमान जी के हार्ट में, द सीताराम आर ओनली देयर, लाइक दैट. तो हनुमान जी इतने अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं कि उनके हार्ट में जब वो शो करते हैं ना फोटो, उनके हार्ट में सीताराम है. तो इसका अर्थ क्या है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट फोटो? द मीनिंग इज that Hanuman ji is always thinking
about Sitaram and how to serve them, how I can please them, how I can serve them. तो हनुमान जी हमेशा इसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, लाइक दैट. तो यही उनके लाइफ का हाईलाइट भी है, एंड दैट इज व्हाई ही इज सो ग्लोरियस. आप देखिए, लाइक इफ यू सी, अगर आप सिर्फ इंडिया में देखिए, आपको हनुमान जी के जो टेम्पल्स है ना, यू विल फाइंड एट एवरी नूक एंड कॉर्नर. आपको हर गली में, हर मोहल्ले में एक हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा. इतना ऑफन राम का मंदिर भी नहीं होता है, दो भगवान राम के मंदिर भी बहुत ऑफन है, बट इफ यू स्पीक अबाउट हनुमान जी मंदिर, देयर आर सो मेनी टेम्पल्स ऑफ हनुमान जी, like that. And you will find there are more devotees of Hanumanji than the devotees of Lord Ram. Yeah, if you speak in one sense, anybody who is devotee of Hanumanji has to be devotee of Lord Ram, because Hanumanji is the devotee of Lord Ram. But people likes Hanumanji so much, like that. And that is why Hanumanji is glorified all throughout the history. हिस्ट्री में जितने भी इंस्टेंसेस हुए हैं ना, उसमें हनुमान जी का जो ग्लोरिफिकेशन है वो एकदम एक्सक्लूसिव है एक्चुअली. और वो क्यों है? बिकॉज ही हैज सच ग्रेट डिवोशन टू सीताराम, लाइक दैट. या सो नाउ इफ यू स्पीक अबाउट रामायण, सो फ्रेंड्स, रामायण ना एक बहुत ही स्पेशल एपिक है. लाइक आई वाज एक्सप्लेनिंग यू ना कि जितने भी अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज हैं इंडिया में, उन सब का अगर आप कल्चरल हेरिटेज देखेंगे ना, इट एक्चुअली लाइज इन रामायण. तो वो एग्जैक्टली रामायण के नाम से नहीं है, लेकिन जो पूरा स्टोरी है ना, it is actually Ramayana, that how Supreme Lord comes in his form, in his human form, and then his consort comes as Sita, and then we have a demon called Ravan, and then he takes away Sita, and then Hanumanji is a great devotee of Lord, he helps to bring back Sita. So this aspect, this cultural aspect is everywhere prevalent, like that. Or like I have like written here, there are more than 300 versions of Ramayana. Matlab Ramayana is so famous. Like I'll give you one example. Even if you see in श्रीमद् भागवतम, लाइक आप लोग बोल रहे होंगे कि हम तो भगवान कृष्ण की ही बात करते हैं हमेशा, लाइक दैट. लेकिन इफ यू सी इवन इन द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इफ यू सी इन श्रीमद् भागवतम, इट इज मेंशन्ड लॉर्ड कृष्णा यूज्ड टू हियर एवरी डे आफ्टरनून अबाउट लॉर्ड राम, like that. Even though Lord Ram and Lord Krishna are same person, but Lord Krishna used to hear every day afternoon about Lord Ram. And similarly, if you see in the history of our existence also, जैसे हमारे जो घर के होते हैं ना बड़े, उनके जो शेड्यूल था ना, उसमें भी एक चीज फिक्स था, that they used to hear about Lord Ram. और आपने भी देखा होगा कि कैसे इंडिया में जब फर्स्ट टाइम टीवी आया था, so I think it was the time of around 1985 when TV first time came to India, and the first, and you know how TV became so famous. Like अभी आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, we have a TV there, like that. Now if you see, every home has a TV, even sometimes two sets of televisions, 3 sets of television in the single home. Lekin if you go back and look into the history, how TV actually came to India was because Ramayana and Mahabharata was the first TV episodes which came on the television, and people used to like them so much. My God, like even if you hear about ISKCON temples and all, because ISKCON is an organization established in 1965 by Srila Prabhupada, and definitely at the time of 1985 and 1988, 1990s, ISKCON is still there. But when Ramayana and Mahabharata used to come on the television, all the devotees used to rush to see. And what to speak of only devotees, everybody in India. I don't know how many of you have heard. I have heard from my parents. Sometimes train used to get stuck actually. Like अगर कुछ ट्रेन का शेड्यूल है कि वो इस टाइम से इस टाइम के बीच में रन करेगी, और अगर उस टाइम में रामायण या महाभारत आता था, तो सारे लोग रुक के पहले उसको देखते थे, and then they used to go, like that. And it was so famous, and people used to love to hear it so much actually. और आपने तो देखा भी होगा कि कैसे when people hear about Ramayana and Mahabharata also, they used to cry tears actually. मतलब वो उनके स्टोरीज इतने एनरिचिंग है हार्ट के लिए, इट इज सो हार्ट टचिंग दैट पीपल कांट स्टॉप देयर टीयर्स एक्चुअली. एंड इट इज ट्रूथ एक्चुअली. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उनको बोल रहा है कि ये बहुत इमोशनल सीन आ रहा है तो इस बार रोए, अगली बार शायद नहीं रोएंगे. एवरी टाइम दे यूज्ड टू सी रामायण. जैसे अभी भी लॉकडाउन के टाइम पे आपको याद होगा रामायण फिर से आया था टीवी पे. People used to see it again, and people can't stop their tears actually, like that. Why? Because it is so close to our heart. The story of Lord Ram, how he came, how he banished, and then how he lived his life. It is so close to everybody's heart that they are able to connect to it so much,
लाइक दैट। तो आप जैसे देखेंगे स्लाइड में मैंने मेंशन किया हुआ है, रामायण का जो फर्स्ट एपिसोड आया था ना, इट स्टार्टेड फ्रॉम 25 जनवरी 1987 and it was ended on 31st July 1988, like that. So I think there were some 100 episodes like that. Similarly of Mahabharata, it started on 2nd October 1988 after like Ramayana finished, because it was liked by so many people, so then Mahabharata also started on TV, like that. So it is from 2nd October 1988 it started Mahabharata, and then it ended on 24th June 1990, like that. So now you see how this entire story of Ramayana is able to catch everyone. Like I'll give you a simple example. अभी हमारा टॉपिक तो थोड़ा दूर है, लेकिन this entire epic of Ramayana itself is so amazing. Like if you see in the entire Ramayana, the Ramayana is a story of uncertainties. मतलब अगर आप देखेंगे रामायण में, आप किसी भी एपिसोड को उठा, किसी भी कैरेक्टर को उठा के देख लीजिए रामायण में, every character has a history of uncertainty. Like Lord Ram is going to become king next day. His Rajya Abhishek is going to happen. But in one night, everything flipped. Everything changed. Kekai, she asked for the boon to Maharaj Dashrath, and how the Lord Ram is banished to forest for 14 years. And then the plan was that he will only go. And then, but seeing that Lord Ram is being banished, Mother Sita also joined. And then seeing that Sita Ram is going, Lakshman also joined. And what to speak of Lakshman, entire Ayodhya wanted to join Lord Ram for that exile. But because Lord Ram didn't want it that everyone should suffer in forest, so he made a plan with Sumantra, and the entire episode happened. He went to Shringverpur, then Chitrakoot, and all those different episodes happened. Everybody knows about Ramayana, like that, all the episodes, and what will happen in the schedule, like that. And then how in the life of Bharat also everything changed. He was there in his Naunihal, he was there in his maternal home, like that. He came back, everything is changed. He found that Ayodhya is filled with tears, everybody is crying everywhere, there is sorrow because Lord Ram has been banished, like that. Similarly, in the life of Ravana, we see how everything changed. He was the person who was enjoying entire luxury and all that, and then he kidnapped Mother Sita, and everything changed in his life. Rather, he has to like be killed by the hands of Lord Ram. So if you see, the entire epic of Lord Ram is filled with uncertainties, like that, and people are able to like relate it so much, because our life also is filled with uncertainties. We don't know anytime what happened, what may happen, like that. And there are so many uncertainties in our life also. Like if you see in Gita, Lord Krishna explains there is only one thing constant in this world, and that is change, like that. That means everything has to be changed. Everything is very uncertain in this material world, like that. So entire Ramayana, it shows it so beautifully, actually. Even extreme examples it shows, like that. So yeah, so this is about Ramayana. Very amazing epic, actually. And yeah, I was doing some research. So you see different versions of Ramayana outside India. Like if you speak about East Asia, we have China, Tibet, Yunnan, Japan, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, all this Sri Lanka, and then Nepal, and all these different countries, they have their cultural heritage also Ramayana only, like that. Only the name is different. If you see here, the name is also mentioned: Bali, Java, Sumatra, then Mindanao. Yeah, I was hearing even in Farsi language, actually. Even in Farsi language, Ramayana is there, actually, like Dastan-e-Ram, like that. I heard it is there. So Ramayana is an epic which is famous all around the world, like that. Yeah, but now comes a very special point. And the point is, the glory of the devotee surpasses even the glory of the Lord. Like ये जो हमने रामायण देखा अभी कि रामायण इतना अमेजिंग है, जब उसको लोग सुनते हैं तो they just can't stop themselves. They keep on hearing, like they are able to like relate it so much. It is so heart touching, like that. So now if you see रामायण जो रामायण है उसमें भगवान राम के जो ग्लोरीज हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है. But in the same epic Ramayana, it explains how the glory of a devotee surpasses even the glory of the Lord. जो भगवान के भक्त होते हैं, जो उनकी ग्लोरी होती है, जो उनकी क्या बोलते हैं इन हिंदी भी से ना, उनकी जो महानता होती है, ग्लोरी, इट सरपासेस इवन द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड. जितनी भगवान की महानता है उससे भी ऊपर निकल जाती है, लाइक दैट. लाइक इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है.
एक बार की बात है व्हेन लॉर्ड राम वाज देयर ऑन द प्लैनेट इन अयोध्या, लाइक दैट। तो उस समय क्या हुआ, एक राम भक्त थे उस समय अयोध्या में, एंड ऑन द डे ऑफ राम नवमी, आपको पता होगा जब जिस दिन भगवान आए थे उसको राम नवमी बोलते हैं, लाइक दैट। आपने देखा होगा ना, राम नवमी, सीता नवमी। सो जो मदर सीता है वो भी नवमी के दिन आई थी, राम भी नवमी के दिन आए थे। सिमिलरली वैसे कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन आए थे, एंड राधा अष्टमी, जो श्रीमती राधा रानी वो भी अष्टमी के दिन आई थी, like that. But if you speak about Sri Chaitanya Mahaprabhu, he came on Purnima. Ashtami plus Ashtami gives Purnima, like that. So like this, Ram also came on Navami, Mother Sita also came on Navami. तो एक बार की बात है, अयोध्या में क्या हुआ, एक राम भक्त थे, like that, and then he was on the day of Ram Navami when Lord Ram's birthday was there. On that day, he was chanting हनुमान चालीसा, वो चैंट कर रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तो वहां पे आते हैं भगवान राम, एंड जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही आस्क्स कि अरे भाई आज तो मेरा बर्थडे एंड यू आर माय डिवोटी, एंड देन यू शुड बी चैंटिंग समथिंग इन माय ग्लोरिफिकेशन, व्हाई यू आर चैंटिंग हनुमान चालीसा, लाइक दैट। उन्होंने ऐसा पूछा। तो जो राम भक्त थे वहां पे, वो बोले क्योंकि मुझे हनुमान जी आपसे भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, आई लाइक हनुमान जी मोर देन यू ऑल्सो माय डियर लॉर्ड। एंड देन लॉर्ड राम सेड, really, he is also my devotee, I am his master, like that, so you should be liking me more, not Hanuman ji. And then Lord Ram asked him one question, if I give you two option, अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं और एक साइड में मैं खड़ा हूं और एक साइड में हनुमान जी खड़े हैं, तो आप किस ऑप्शन को चूज करोगे? उन्होंने ऐसा बोला, राम भगवान ने। तो वो जो राम भक्त था उसने कहा, विदाउट अ सेकंड आई विल चूज हनुमान जी। और इसको सुन के राम जी शॉक्ड हो गए एक्चुअली, अरे ऐसा क्यों कि मतलब राम भक्त है और हनुमान जी भी राम भक्त है, तो राम को चूज करना चाहिए। एंड देन ही एक्सप्लेन्स वेरी ब्यूटीफुली, ही सेड, माय डियर लॉर्ड, यू आर सर्टेनली लाइक लोटस। आप ना एक जो कमल होता है उसके समान है, यू आर अनडाउटेडली लाइक लोटस, एंड योर पास्ट टाइम्स एंड योर क्वालिटीज आर लाइक द हनी इन दैट लोटस, बट वी कांट एक्सेस द हनी इन दैट लोटस। only a honeybee who knows where that honey lies, and he has the capability of taking out that honey and distribute it to us. So then we are more grateful to that honeybee, like that. Or Hanuman ji is like that honeybee, क्योंकि वो हनुमान जी जो हैं उनकी हेल्प से we are able to get the nectar of your pastimes. Though you are like lotus and your qualities and pastimes are like honey, no doubt, but we are not able to access it, and only with the help of a devotee we are able to access it. That is why the glory of a devotee even surpasses the glory of the Lord, like that. So इसलिए एक्चुअली जो हनुमान जी का कैरेक्टर है वो बहुत स्पेशल है, इट इज वेरी वेरी स्पेशल, लाइक दैट। या सो नाउ अभी हम एक वो देखेंगे वर्स। ये वर्स आप लोगों ने भी काफी सुना होगा, इट्स अ वेरी फेमस वर्स, लेकिन ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि हनुमान जी हैं कौन असलियत में, हु इज हनुमान जी, like that. So all of you can see, if you want to take a snapshot you can take. It says, manojavam marudhatulya vegam jitendriyam buddhimatam varishtham vatatmajam vanarayuddha mukhyam Shri Ramadutam sharanam prapadye. Again I will recite, maybe आप लोगों को जिसको याद हो they also can recite with me. It says, manojavam मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एक और मैंने श्लोका देखा है, उसमें बोलते हैं श्री रामदूतम सिरिसा नमामि, लाइक दैट। सो नाउ अभी हम इसको देखते हैं कि हनुमान जी असलियत में हैं कौन, जिस व्यक्ति के बारे में हम इतना बोल रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड हु दैट पर्सनैलिटी इज, व्हाट आर हिज traits, how his character is, like that. And then it explains, manojavam marudatulya vegam. It says manojavam, Hanuman ji's mind is completely under his control. Now my dear friends, if you see, people suffer in this world, why? Because their mind is not in their control. In fact, अगर आप गीता में भी देखेंगे, even in भगवत गीता, अर्जुन tells to कृष्णा, जो अर्जुन है वो भगवान कृष्ण से बोलते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्यहम निग्रहम मन्ये वायोरेवाश दुष्करम। अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण से कि
कृष्ण आप मुझे बोल रहे हो कि मैं जो योग है उसको करूं और अपना मन आप में लगाऊं, भगवान में लगाऊं, लेकिन मन को कंट्रोल करना तो सबसे डिफिकल्ट टास्क है। इनफैक्ट अर्जुन बोलते हैं दैट आई हैव अ कैलिबर टू कंट्रोल विंड। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू सी इन द एंटायर हिस्ट्री, नोबडी हैज कंट्रोल्ड विंड। अभी आप भी देखते हैं अमेरिका में साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, टाइफून, साइक्लोन्स, entire government can't do anything about it. Why? Because the power of wind is so much that nobody can control. Arjun is telling chanchalam hi mana krishna pramati balvadradham tasyaham nigraham manye vayorevashu duskaram, vayorevashu duskaram. He is telling that Krishna, to control the mind is more difficult than to control wind. Now who is Arjuna? Try to understand. Arjun has the capability to control wind. अभी अर्जुन के पास वो है पावर कि वो विंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। दैट मीन्स इन दिस वर्ल्ड द बिगेस्ट अचीवमेंट, अगर आपको इसको कहीं पर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, इस वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो पता है क्या है? दैट इज if somebody can control his mind. That is the biggest achievement of this world. You'll find there are big first rank holders in different examinations, IIT, JEE, and then IAS and all the different examination, MS and PST and all that, CAT, NEET and all. Now there are many people who are first rank holders of these very difficult competitions, but they also fail when it comes to control their mind like that. That means a person who has actually controlled his mind is the biggest achiever in this world. And who is Hanumanji? He is Manojavam. He has controlled his mind fully. He is Hanumanji actually. So now it is told Manojavam Marudatulya Vegam, and he do all his services, he do all his activities at the speed of wind. Marudatulya Vegam, like that. He do at the speed of wind or at the speed of mind also. It explains like that कि वो जो अपनी सारी एक्टिविटी हैं वो इतना फास्ट करते हैं actually. He is so quick actually. He is so quick, he is so active, he is so alert in doing all his activities. He do it at a speed of wind like that. So Hanumanji is so active in serving Lord Ram. So it says Manojavam Marudatulya Vegam, and the next line Jitendriyam. That means he has full control over all his senses. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अभी मतलब हम इसको यहाँ पे वो कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बट दिस थिंग ना, इट्स अ वेरी डीप थिंग. नाउ अगेन इफ यू ट्राई टू इमेजिन, ही इज जितेंद्रियम, ही इज द पर्सन हु हैज कॉन्कर्ड ऑल हिज सेंसेस. अभी इसका मीनिंग क्या है ना, इसका मीनिंग है लाइक हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट टाइगर वुड्स? So now he was a personality topmost in golf, like that, if you speak about Tiger Woods, and so much wealthy. Such wealth he has acquired because he was very expert in playing golf, like that. But he was found scandal with her secretary, a sex scandal, like that. Now because he cannot control his senses, that is why he has lost all his glories. So in this world, people might be having great talents, but those talents have very less value unless they have a good character. And what is meant by good character is that we are able to have control over our senses. We are able to control senses. Senses don't control us, like that. So now who is Hanumanji? He is Jitendriyam. He has controlled all his senses actually. That means he is a person who can focus on anything. Now those people who have controlled the senses means they can focus on anything and they can achieve anything in this world, like that. So now he is Jitendriyam, and then next is Buddhimatam Varishtham. Jitendriyam Buddhimatam Varishtham. He is topmost in intelligent people. It says Buddhimatam means intelligence. Buddhimatam Varishtham. He is topmost, like that. He is topmost in the list of intelligent people, like that. Who is topmost? Hanumanji, like that. So it says Manojavam Marudatulya Vegam Jitendriyam. So he has Manojavam, he has control over his mind. Marudatulya Vegam, he do all his activities at a speed of wind or mind, like that. Jitendriyam, he has controlled all his senses. Buddhimatam Varishtham, and he's topmost in the list of intelligent people, like that. Buddhimatam Varishtham. And then Vatatmajam, he's the son of Vat. Vat means Pavan. बोलते हैं ना कि जो हनुमान जी, he's वायु पुत्र, like that. So he's Vat Atmajam. He has born of Vata. He has born of Pavan, like that. So he's Vatatmajam Vanara Yuddha Mukhyam, and he's the leader of the entire what we say soldiers of the army soldiers of monkeys, like that.
Vanara Yuddha Mukhyam. He's the topmost in that Vanar Yuddha, like that. Vatatmajam Vanara Yuddha Mukhyam Shri Ram Dutam शरणम प्रपद्ये. और ये जो सबसे आखिरी में वर्ड आ रहा है ना, श्री राम दूतम, ये उनके जितने भी क्वालिटीज हैं उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्चुअली, श्री राम दूतम. इसका जो मीनिंग है ना वो है, ही इज द दूत. दूत मीन्स सेवक, लाइक दैट. ही इज द सर्वेंट ऑफ हुम, श्री राम दूतम. ही इज द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड श्री रामचंद्र. श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये मीन्स I take his shelter. So the word sharanam prapadye means I take his shelter, like that. So who is Hanumanji? That so he has all these qualities. He is manojavam, he is marudatulya vegam, he is jitendriyam buddhimatam varishtham vatatmajam vanaryuddha mukhyam. But out of all this, the most important qualities comes in the last, and it says Shri Ramadutam. He is the servant of Lord Shri Ramachandra. And my dear friends, if I tell you a secret, the secret is that why Hanumanji is so glorified, why he has all these qualities at first place. उनके पास ही इतनी सारी क्वालिटीज आई कहां से? Like how he has become manojavam, marudatulya vegam, jitendriyam, buddhimatam varishtham. So how he has become that? वो उनको ये सारी क्वालिटीज कहां से मिली? It came from one quality, and that is Shri Ramadutam. He is the servant of Lord Shri Ramachandra. So actually, my dear friends, if you see in your life also, if we also become very dedicated servants of Krishna or Lord Ram, of God, I would say, like that. अगर हम भी अपने जीवन में एक, if we are able to develop devotion to Lord Ram, then we also can develop all these qualities. Maybe right now, so we don't have time to explain you, but maybe in future I will explain you how this one quality of Shri Ramadutam, if somebody becomes the servant of Lord Ram, when somebody becomes this, then all these qualities automatically comes in him. So maybe in future we'll keep some session how it happens, what is the science behind it, we'll see that. But for right now you can just understand it, that why Hanumanji has all these qualities, because he is Shri Ramadutam, because he is the servant of Lord Shri Ramachandra, like that. And then it says Sharanam Prapadye, I take his shelter, like that. So now, my dear friends, actually Hanumanji is a very amazing personality, and this verse is just a glimpse. Now Hanumanji के अगर आप activities देखेंगे, then you will be shocked कि how can somebody be so intelligent, so dedicated to Lord Ram, and with such pure heart, actually, like that. So अभी हमारे पास जो भी time बचा है, in next 15-20 minutes, we'll try to see a very beautiful pastime from the life of Hanumanji. और ये जो पास टाइम है ना, ये पास टाइम है जब हनुमान जी माँ सीता को ढूंढने के लिए लंका जाते हैं. सो नाउ ये बहुत ही स्पेशल पास टाइम है एक्चुअली. इट कम्स इन सुंदरकांड. अगर आप रामायण रीड करेंगे तो उसमें एक कांड आता है सुंदरकांड, जो कि युद्ध कांड से पहले आता है. जब वो युद्ध होने वाला है, लंका कांड, सो दैट्स कॉल्ड युद्ध कांड. उससे पहले आता है सुंदरकांड. इनफैक्ट इंडिया में तो बहुत फेमस है, आप देखेंगे बहुत सारे घरों में दे डू द पार्ट ऑफ सुंदरकांड. तो जस्ट इसके लिए भी मैं एक ऐड करूंगा सेंटेंस. आपको पता है ये जो सुंदरकांड है, इसको सुंदरकांड क्यों बोलते हैं? लाइक आप देखेंगे तो इतने सारे उसमें अयोध्या में रामायण में कांड है. वी हैव अयोध्या कांड, देन किष्किंधा कांड, लेकिन ये जो कांड है इसका नाम जो वाल्मीकि जी ने दिया वो दिया सुंदरकांड. एनीबडी नोज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई दिस कांड इज कॉल्ड सुंदरकांड? एनीबडी, एनी शेड ऑफ आइडिया? और यस सर. यस आयुष. आयुष ही बोल रहे हैं कि कोई और बोल रहा है? यस सर, माई सेल्फ उत्कर्ष. अच्छा उत्कर्ष, सॉरी या उत्कर्ष, प्लीज टेल. जी सर, इसका सर जो रीजन है, मैंने सुना था कि इसमें जो हनुमान जी थे माँ जानकी से मिले थे, तो उन्हें भगवान राम के मिलने का एहसास हुआ था कि हम लोग अब मिल जाएंगे, जो वापस जो रावण जब उन्हें उठा के ले गया था, तो उनका जो मिलन हुआ था, इस कारण इसे सुंदरकांड कहते हैं. और भी इसके सर काफी रीजंस हैं इसके कहने के. उनमें से एक रीजन मुझे ये पता है, अभी याद आ रहा है, बाकी बताए थे मुझे पता है इसके, लेकिन यही एक याद आ रहा पर्टिकुलर. हाँ ठीक है उत्कर्ष, ट्रू. एक्चुअली ये भी एक रीजन है. इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और वो है एक्चुअली जो वाल्मीकि जी है ना, ही इज एबल टू सी इन द एंटायर रामायण द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी आफ्टर लॉर्ड राम इज एक्चुअली हनुमान जी, like that. अभी आप बोलेंगे अरे वो तो हनुमान जी is in the body of monkey, how he can be so beautiful, but he actually is very very beautiful,
सो इसलिए ये जो पूरा कांड है ना, आप देखेंगे इस पूरे कांड में हनुमान जी की ही एक्टिविटीज हैं, एंड इसलिए इस कांड का जो वाल्मीकि जी ने नाम रखा वो रखा सुंदर कांड। वाई? बिकॉज हनुमान जी इज एक्सट्रीमली सुंदर। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करते हैं वाई हनुमान जी इज वेरी सुंदर, वाई ही सो ब्यूटीफुल। और जो अभी इन्होंने उत्कर्ष ने बताया एग्जैक्टली, फिर उसके बाद वो यही रीजन देते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने अपने लाइफ के जितने भी एनर्जी था, अपने जितने भी रिसोर्सेज थे, उन सबको भगवान राम की जो सेवा है उसमें झोंक दिया। मतलब ही एंगेज्ड एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड राम। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने रामायण का सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, और वो काम था माँ सीता और भगवान राम को साथ में मिलाना, like that. So because he has helped mother Sita and Lord Ram to get united again, that is why he has done the most beautiful activity, and that is why this is also called Sundarkand. तो इसके ये एक दो रीजन है। एक रीजन ये भी है बिकॉज हनुमान जी इज वेरी ब्यूटीफुल, लाइक दैट। या तो उसी में से एक ये मैंने छोटा सा लिया था, एक हम लोग के लिए बहुत स्पेशल पास टाइम है एक्चुअली ये, हम लोग बहुत कुछ लाइफ में अपने सीख सकते हैं इससे। सो दिस इज हनुमान्स ट्रिप टू लंका, लाइक दैट। दिस इज हनुमान्स ग्लोरियस ट्रिप टू लंका, आई वुड से। या फ्रेंड्स, सो ऑल ऑफ यू नो द पास टाइम ऑलरेडी, लेकिन हम इसमें से देखेंगे कि वो व्हाट लेसन्स वी कैन लर्न। सो नाउ ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दिस इज द पास टाइम व्हेन जामवान ही इंस्पायर्ड हनुमान जी टू क्रॉस द ओशियन। अभी आपको जो पूरा पास्ट टाइम है वो याद होगा कि कैसे जो हनुमान जी हैं, ही वाज कर्स्ड बाय द सेजेस, जो लाइक ऋषि मुनि थे, उन्होंने उनको श्राप दिया था कि आपके जितने भी पावर्स हैं वो आप भूल जाएंगे, लाइक दैट। उसके पीछे का रीजन भी आपको मालूम होगा कि ही वाज ब्लेस्ड बाय ऑल द डिफरेंट डेमिगॉड्स, तो उनको बहुत सारी शक्तियां दी गई थी जितने भी देवता लोग हैं। और जो ये जो लाइक ऋषि लोग थे, इन्होंने श्राप दिया था क्योंकि हनुमान जी उस समय छोटे थे और उनका बहुत अच्छे से यूज नहीं कर रहे थे, like that. Now, Jamvan, he reminded Hanuman ji that, my dear Hanuman, you are actually very, very capable. You are the only person who can cross the ocean, who can search Mother Sita in that very terrific city of Lanka, and then you can come back also. Like that, you are the only person. And then he explains everything कि आपके पास इतनी सारी शक्तियां हैं और इस टाइप से। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू सी, ये जो एपिसोड है ना, इससे एक बहुत अच्छी सीख हमें मतलब हम सीख सकते हैं, एंड दैट इज हाउ वी शुड बी कंप्लीटली इन, हाउ वी शुड नॉट बी एट ऑल इनसिक्योर। हम लोगों को ना अपने लाइफ में इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। लाइक मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जो जामवान है ना, ही हेल्प्ड हनुमान जी टू ब्रिंग आउट हिज बेस्ट। लेकिन आप जैसे आजकल का जो वर्ल्ड है, अगर आप उसमें देखेंगे तो लोग चाहते हैं एक दूसरे पे स्टेप ओवर करना। लाइक स्पेशली इफ यू सी इन द वर्ल्ड ऑफ द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। अभी आज के वर्ल्ड में इतना कॉम्पिटिशन है, लाइक दैट एवरीबडी वांट्स टू स्टेप ओवर अदर्स, कि मैं जो स्टडी कर रहा हूँ वो दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए, और अगर मैं किसी चीज का कर रहा हूँ प्रिपरेशन तो उसका हेल्प उसको नहीं मिलना चाहिए। नाउ उससे क्या होता है ना, असलियत में अवर कॉन्शियसनेस हैज बिकम वेरी वेरी माइन्यूट। हमारी जो चेतना है ना वो बहुत संकुचित चेतना हो गई है उसके कारण। इसके कारण लोग ना आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाते हैं। वो बस उनको लगता है कि मैं बस अपने लिए अगर थोड़ा बहुत कर लूंगा तो वो मेरी लाइफ का सक्सेस है। लाइक दिस दे आर नॉट एबल टू अनवेल देयर फुल पोटेंशियल। इंटरेस्टिंगली इस लाइफ में अगर आप देखेंगे ना, जो व्यक्ति दूसरों को हेल्प करते हैं, लाइक दोज हु डू सेल्फलेस वर्क, दे आर मोस्ट सक्सेसफुल पीपल। व्हाई? बिकॉज दे आर एबल टू अनवेल देयर पोटेंशियल ऑल्सो। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जामवन, ही इज नॉट इनसिक्योर कि अगर मैं हनुमान को इंस्पायर करूंगा तो हर जगह हनुमान का ही नाम आएगा, मेरा नाम आएगा ही नहीं। और ऐसा हुआ भी, अगर आप देखेंगे रामायण में ऐसा ही हुआ। रामायण के हीरो कौन है? हनुमान जी हैं एक्चुअली। और जो जामवान है उनको तो कोई भी नहीं पूछता है। लेकिन इफ यू सी जामवान, ही वाज हैविंग सच ब्रॉड माइंडसेट दैट ही इंस्पायर्ड हनुमान जी, एंड ही वाज नॉट फीलिंग एट ऑल इनसिक्योर कि अरे इससे अगर मैं ऐसा करूंगा तो शायद मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, इसको मुझे इतना ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए, लोग बोलते हैं आजकल, लाइक दैट। So that means we also should be like that. We should be able to bring out best in others, like that. So if we are like this ना, then we also will get people like this. अभी अगर आप इस तरह के लोग, अगर आप खुद ऐसा बनने का ट्राई करेंगे ना कि आप खुद इनसिक्योर फील नहीं करते हैं और आप दूसरों का हेल्प करते हैं जिसमें भी आप कर पाते हैं, like that, then you will also find people around you who are helping you to bring your best out, like that. Actually जो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज है ना, जैसे अभी पूर्णचंद प्रभु एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे जो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज है वो इतना अमेजिंग है। लाइक आप लोग के कुछ फ्रेंड्स हैं जो हमारा स्टूडेंट सेंटर है इलाहाबाद में, दे स्टे देयर, like that. So now friends, if you see why this association is so amazing, ये जो भक्तों का एसोसिएशन होता है ना, ऐसा लगता है कि ये लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं, साथ में आते हैं, आरती करते हैं और कोई
मृदंग बजाता है, कोई कुछ कुछ बजाता है, कुछ भगवान का नाम गाते हैं, तो इसमें क्या इतना ग्रेट है? मतलब ऐसा, आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा, लेकिन जनरली ऐसा फीलिंग होता है कि इसमें कौन सा इतनी महान बात है। लेकिन इफ यू सी, दिस एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज सो अमेजिंग। व्हाई? बिकॉज इट ब्रिंग्स बेस्ट आउट ऑफ यू। दीज पीपल, दे आर नॉट, दे डोंट फील इनसिक्योर। वो लोग खुद इनसिक्योर फील नहीं करते कि मैं इसका हेल्प कर दूंगा तो ये मुझसे आगे निकल जाएगा, इस तरीके से, इसलिए वो अपने लाइफ में भी आगे बढ़ पाते हैं। ये बहुत सीक्रेट है एक्चुअली लाइफ का। एंड व्हेन वी गेट सच एसोसिएशन, जब हमें ऐसा संग मिलता है ना, और मतलब ऐसा नहीं हो कि एसोसिएशन आप जो फिजिकल एसोसिएशन है सिर्फ वो भी एसोसिएशन नहीं होता है। हम अभी हम जैसे जूम पे आए हुए हैं सब लोग साथ में, उसका मतलब ये एसोसिएशन ही है, लाइक दैट। सो नाउ इफ यू सी कि या तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को, अगेन आप लोगों को कुछ इनसिक्योरिटी फील करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग अभी नहीं है वहां पे नहीं रह रहे हैं, क्योंकि जो भक्ति है उसका मतलब ये है ही नहीं। एसोसिएशन मीन्स वी शुड बी इन टच विद ईच अदर, लाइक दैट। सो नाउ when we are in association of devotees, then devotees help us to bring our best. तो उससे क्या होता है कि हम भी अपना बेस्ट होता है ना, उस लेवल तक परफॉर्म कर पाते हैं। और क्योंकि हम दूसरे का हेल्प कर रहे हैं ना, एंड देन इट इज एस्पेक्ट ऑफ नेचर, व्हेन यू हेल्प समबडी, देन यू आल्सो इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट टू बी हेल्प्ड बाय समबडी, लाइक दैट। जो हमारा नेचर है ना, वो बहुत अमेजिंग है एक्चुअली। दिस एंटायर नेचर, इफ यू आर सेल्फलेस, इफ यू आर हेल्पिंग समवन, देयर विल बी सर्टेनली समबडी। ऐसा हो सकता है आपने जिस व्यक्ति की हेल्प करी, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही आपकी हेल्प करेगा, बट फॉर श्योर यू आर गोइंग टू रिसीव हेल्प फ्रॉम समबडी एल्स। सो हमारा पूरा नेचर का पूरा कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है, लाइक दैट। सो दैट्स व्हाई वी आल्सो शुड लर्न फ्रॉम रामायण। जैसे जो जामवन है ना, वो इंस्पायर कर रहे हैं हनुमान जी को कि अरे यू कैन डू, यू कैन डू, यू आर द ओनली वन हु कैन डू। ही इज नॉट फीलिंग इनसिक्योर कि अरे इसका नाम ऊपर हो जाएगा और मैं इसको इंस्पायर कर दूंगा तो यही हीरो बन जाएगा रामायण का। इट्स नॉट लाइक दैट एक्चुअली। देयर हार्ट्स आर सो प्योर, लाइक दैट, एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ। तो ये भी एक रीजन है एक्चुअली, लाइक दैट। या सो ये एक एपिसोड था, हाउ व्हेन हनुमान जी हैड टू क्रॉस इट, देन जामवन इंस्पायर्ड। और उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई एक्चुअली। आप सब लोगों को मालूम होगा, जब हनुमान जी ने वो जो माउंटेन था उस पे से जंप लिया, तो हनुमान जी का जंप इतना पावरफुल जंप था। जब उन्होंने जंप लिया ना, तो वो पूरा माउंटेन ना धस गया था एक्चुअली। दैट एंटायर माउंटेन इट सिंक्ड इनटू द ओशन एंड हनुमान जी फ्लाइड, लाइक दैट। तो उसके बाद क्या हुआ ना, लाइक मैं आप एक बहुत अच्छा एपिसोड बताता हूँ आपको। इट केम इन वाल्मीकि रामायण। तो उस समय क्या हुआ ना, हनुमान जी जब उस माउंटेन से जंप किए, एंड देन व्हेन ही वाज देयर ऑन द ओशन, तो आपने देखा होगा, जैसे आप लोग जो लोग फ्लाइट में ट्रेवल किए हैं, तो आपने देखा होगा कि कैसे जब फ्लाइट जब टेक ऑफ करता है एंड देन व्हेन इट गोज, तो जो पीछे का जो एयरपोर्ट होता है, देन वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है और हमारे पास फिर कुछ भी शेल्टर नहीं होता है। लाइक आप लोगों ने जिन्होंने ट्रेवल किया होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा। तो हमें क्या लगता है, अभी जो धरती है उसको तो छोड़ दिया है, एंड देन वी सी ओनली क्लाउड्स। तो हम जहाँ पे एंटर कर जाते हैं वो सिर्फ बादल बादल होते हैं, और हमें फिर मालूम भी नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बट वी हैव पायलट, ही नोज एवरीथिंग, लाइक दैट। लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा होता है। अभी जब हनुमान जी ने जंप किया, देन धीरे धीरे शोर पीछे छूट गया, नाउ ही इज देयर इन मिडल ऑफ ओशन। अभी वो ओशन के बीच में है और उनके पास कुछ भी शेल्टर नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, देयर इज ओनली वाटर, लाइक दैट। आप लोगों ने जिसको थोड़ा ओशन का भी एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा यू कैन सी कि जैसे हनुमान जी जब वो जा रहे थे ना, देन ही हैज ओनली वाटर अराउंड, अभी कुछ भी नहीं है आसपास में। तो जो वाल्मीकि जी हैं, वो इस चीज को बोलते हैं कि हनुमान जी के माइंड में ना एक थॉट आता है। वो ऐसा बोलते हैं कि अगर ऐसा हो गया कि मेरा स्टेमिना खत्म हो गया और मैं थक गया, तो मैं कहाँ जाऊंगा, फिर तो मैं यहीं पे डूब जाऊंगा, मेरी यहीं पे मृत्यु हो जाएगी। तो हनुमान जी के माइंड में एक बार के लिए ये थॉट आया था। उन्होंने सोचा कि उस समय क्या होगा अगर मैं थक गया, अगर मेरा स्टेमिना टूट गया सारा, इस टाइप से। लेकिन इमीडिएटली हनुमान जी के माइंड में एकदम से एक और थॉट आता है। वो बोलते हैं कि मैं भगवान राम का नाम चैंट कर रहा हूं, और भगवान राम का नाम जो भी चैंट करता है वो तो भव सागर क्रॉस कर सकता है। Anybody who chants the name of Lord Ram, he can cross the entire material ocean very easily. What to speak of this small Indian ocean, like that? तो उन्होंने सोचा ये तो कुछ 100 योजन का ओशन है, इसको क्रॉस करना क्या डिफिकल्ट हो सकता है। एंड देन ही स्टार्टेड चैंटिंग द नेम्स ऑफ लॉर्ड राम इवन मोर एम्फेटिकली, लाइक दैट। तो हम लोग भी इससे बहुत अमेजिंग चीज सीख सकते हैं अपने लाइफ में। लाइक आप लोगों ने देखा होगा ना कि कैसे हम लोग भी जो चैंटिंग है उस पर बहुत एम्फेसिस करते हैं। आपने देखा होगा, जब हम अपना जो लेक्चर है, वो अपना जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं हरे कृष्णा। आपको जब कोई फोन करते हैं तो बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु, हाउ आर यू। तो हम हर जगह भगवान का नाम लेके आते हैं पहले, लाइक दैट। ऐसा क्यों है ना, इसके पीछे बहुत डीप साइंस है।
actually. And the science is that this name of Lord Ram, this name of Supreme Lord, Lord Ram, it contains all the powers, and that is 100% true. And then आप मेरे से पूछ सकते हैं ऐसा कहाँ लिखा है, क्या है? इसके तो innumerable evidences हैं. If you speak about शिक्षा अष्टकम, if you speak about रामायण, if you speak about महाभारत, गीता, everywhere the main thing which comes out is the name of Lord. Like मैं जैसे आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर रहा था ना कि जो रामायण है ना उसका एसेंस असलियत में क्या है? भगवान राम का नाम. यही ये पूरे रामायण का एसेंस है एक्चुअली, लाइक दैट. और इसलिए फिर हनुमान जी से हमें वो सीखने को मिलता है कि कैसे राम नाम चैंट करना चाहिए. इसलिए हनुमान जी का लाइफ भी एसेंस है, लाइक दैट. तो हनुमान जी ने उस समय भगवान राम का नाम चैंट करना स्टार्ट किया और ज्यादा एम्फेटिकली, और ज्यादा अच्छे से, और ज्यादा एब्जॉर्प्शन से. एंड ही वाज विदाउट अ डाउट ही वाज एबल टू अकम्प्लिश हिज मिशन. तो वो जो सारा एनर्जी कहां से आ रहा था ना, वो सारा स्टेमिना कहां से आया हनुमान जी के पास? फ्रॉम द चैंटिंग ऑफ द नेम्स ऑफ लॉर्ड राम. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली वी ऑल्सो कैन सी अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग फ्रॉम दिस. हमारे लाइफ में भी ना, अगर आपको देखना है कि कैसे आपके जो गोल है, आपके लाइफ में भी कुछ गोल होंगे. लाइक जैसे हनुमान जी के लाइफ में गोल है ही हैज टू सर्च मदर सीता, ऐसे हमारे लाइफ में भी गोल है. लाइक जैसे आपके एग्जाम्स थे अभी पहले, सो नाउ द गोल इज दैट आई शुड गेट अ डिसेंट पॉइंटर, आई शुड गेट पास इन ऑल द सब्जेक्ट, आई शुड नॉट फेल एनीवेयर, एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. लाइक जैसे हम लोग स्टूडेंट, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, मैं तो आई एम ऑल्सो स्टूडेंट इन वन सेंस, बट फॉर यू एज अ पर्सन डूइंग बीटेक. सो नाउ जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही स्टडीज है. सो नाउ यू हैव अ गोल इन योर लाइफ दैट यू हैव टू स्टडी वेरी वेल, यू हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स एंड ऑल, लाइक दैट. नाउ फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू गेट द स्टेमिना, फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू गेट द स्ट्रेंथ टू टेक ऑन टू देयर गोल इवन आफ्टर ऑब्स्टेकल्स. क्योंकि हम जो भी कुछ अचीव करते हैं तो उसमें ऑब्स्टेकल्स तो आते ही हैं, बिकॉज वी आर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड. और सबके लाइफ के ऑब्स्टेकल्स भी अलग होते हैं. लाइक इफ आई आस्क एनी वन ऑफ यू ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन सो मेनी ऑब्स्टेकल्स जो कि बहुत एक्सक्लूसिव है आपके लाइफ के लिए. मतलब वो ऐसा हो सकता है किसी और के लाइफ में ना हो, लेकिन आपके लाइफ में हो, लाइक दैट. लेकिन उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने का जो स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ है वो कहां से आता है ना? इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम चैंटिंग. अभी आपको लगेगा अरे ऑब्स्टेकल तो मेरा किसी और टाइप का है, और जो चैंटिंग हो तो बस एक जगह बैठ के मैं मतलब आई कैन डू. लेकिन यस, यही सीक्रेट है, मतलब लाइक दैट. If somebody can chant this holy names of Lord Ram, then he will get the sufficient strength and stamina to do everything in this world, and he will not be tired at all, like that. तो ये हम we can learn this like that. इसलिए आप लोगों ने भी देखा होगा, every time I used to ask every one of you that how many of you are chanting at least one round every day and like this. Why ना? Because it is very very crucial. If you can just make sure, अगर आप बस अपने लाइफ में इतना मेक श्योर कर लें कि आप हर रोज चैंटिंग पक्का करेंगे, एटलीस्ट वन राउंड, आप एटलीस्ट यू विल टेक आउट 5-10 मिनट्स, जो कि हमारे डे का 1% टाइम भी नहीं है. लाइक अगर आप इफ यू सी 10 मिनट्स आउट ऑफ 24 आवर्स, इट इज नॉट जस्ट 1% ऑफ द डे. लेकिन अगर आप इतना ठान लें, एटलीस्ट यू टेक अ वाव कि एटलीस्ट मैं रोज एक राउंड तो पक्का चैंट करूंगा, देन यू विल सी योर लाइफ विल गोइंग टू चेंज 100%. You will going to get sufficient strength. In fact, you will going to get will power. जो बोलते हैं ना कि संकल्प शक्ति नहीं आ रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है करने का, like that. Though I want to do, but I'm not able to do. I'm not get that sufficient will power. Everything comes. Actually, I can write down and give you each one of you like that. Everything will come if we simply chant the Hare Krishna Mahamantra. Like that. क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र तो बहुत स्पेशल. भगवान राम का नाम भी आता है, भगवान कृष्ण का नाम भी आता है, श्रीमती राधा रानी का नाम भी आता है, और माँ सीता का नाम भी आता है. We say no Hare Krishna and then Hare Ram, like that. So I will ask again to all of you, how many of you are able to chant at least one round every day? At least आप एक राउंड हमेशा टाइम मिल जाता है आपको चैंट करने का. Yeah, you can raise your hands maybe. That will be good. Okay, Ponchand Pru is one. Shashi Pru also. Ashish Pru also. Adarsh Pandey Pru also. Okay. Who else? Karthike Pru, Sundaram Pru. ओके, दैट्स इट. और सब लोग रोज नहीं कर पाते हैं चैंटिंग, एटलीस्ट एक राउंड. ओके फाइन. आई थिंक उत्कर्ष प्रू, लाइक ऋतिक प्रू, ये सब भी होंगे, बट शायद इनका हाथ शायद रेज नहीं हो रहा है, बट नो इश्यूज. ठीक है, लाइक ऋतिक प्रू ऑल्सो. या फ्रेंड्स, एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब वो पूरा एसेंस ही यहाँ पे आता है निकल के. अगर आपको लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना है तो इसको अप्लाई करना है लाइफ में प्रैक्टिकली, लाइक दैट. सो इस तरीके से जब हनुमान जी जा रहे थे तो ही गॉट द स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना फ्रॉम चैंटिंग ऑफ होली नेम्स ऑफ लॉर्ड. और आपको भी अगर कहीं पे लिखना है, मतलब अपने माइंड में कहीं पे लिखना है ना, तो आप उसको यू कैन लाइक राइट इट डाउन. एनी टाइम यू फेस एनी डिफिकल्टी इन योर लाइफ,
एंड व्हेन यू ट्राइड एवरीथिंग एंड एनीथिंग डिडंट वर्क, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और उसमें कुछ भी काम नहीं किया, और अभी आपको लग रहा है कि इसका सोल्यूशन मेरे पास तो नहीं है, आई डोंट हैव सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल, then sit down and start chanting the Hare Krishna Mahamantra. You will find amazing thing in your life. मतलब ऐसा सिर्फ मैं अपने लाइफ के साथ नहीं बोल रहा हूँ, I have heard so many devotees saying the same thing. हमारे लाइफ में जब कोई ऐसा ऑब्स्टेकल आता है ना जिसमें हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, सी आई एम नॉट सेइंग डोंट ट्राई एनीथिंग, we have to try. In fact, Lord Krishna says in Bhagavad Gita that we have to do our part and then I will show the mercy, like that. तो आपने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन आपको लग रहा है कि अब तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, then you start chanting Hare Krishna Mahamantra very intensely, you will 100% find solution, like that. तो इस तरीके से है हनुमान जी का जो ट्रिप था। इसके बाद में ना so like this Hanuman ji got the power from chanting of holy names of Lord. So friends, it is already 1 o'clock. Maybe it is fine, we can go for 5-10 more minutes. We have 3 more obstacles to cover जो कि हनुमान जी के लाइफ में आए थे, which are very crucial. Is it fine? We can go for 5-10 more minutes. Yes sir. Okay. Okay, तो हम just लेते हैं. We have actually 3 more most important obstacles which came, and then we'll finish. Yeah. इसके बाद में जो एक ऑब्स्टेकल हनुमान जी के सामने आया, अभी हनुमान जी ही इज देयर ऑन द सी, अभी जो ओशन है ना उसके ऊपर हनुमान जी फ्लाई कर रहे हैं, लाइक दैट ही इज फ्लाइंग. नाउ कम्स 3 वेरी ग्रेट ऑब्स्टेकल्स इन हिज पाथ. उसमें से जो सबसे पहला ऑब्स्टेकल था ना, दैट ऑब्स्टेकल वाज द ऑब्स्टेकल ऑफ कंफर्ट. और वो ऑब्स्टेकल किस फॉर्म में आया? इट केम इन फॉर्म ऑफ मेनक माउंटेन. आपने सुना होगा एक मेनक पर्वत थे, वो हनुमान जी के पास आए. असलियत में हनुमान जी के वो पूर्वज थे. इस तरीके से आता है वाल्मीकि रामायण में कि जो मेनक पर्वत थे, ही वाज द फोरफादर ऑफ हनुमान जी, लाइक दैट. एंड दिस मेनक पर्वत, इन्होंने हनुमान जी को बोला कि अरे हनुमान, आप भगवान का, आप तो इतना बड़ा मिशन लेके जा रहे हो, यू हैव द वर्क टू अकम्प्लिश ऑफ लॉर्ड राम्स वर्क, लाइक यू हैव टू फाइंड मदर सीता. आप क्या करो, ये जो मेरा माउंटेन है ना, इसमें बहुत सारी केव्स हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं, तो आप थोड़ा सा आराम कर लो और उसके बाद निकल जाना फ्रेश होके, लाइक दैट. यू कैन टेक सम नैप, यू कैन टेक सम फ्रेश वाटर, आई कैन अरेंज फॉर सम waterfalls and all that. You take some nap and then you go. Hanuman ji told, no, I am there today on a mission, I cannot lose my focus. तो हनुमान जी ने जो अपना फोकस था ना, उसको लूज नहीं होने दिया by the comforts of life, like that. So now if you want to see, इससे भी ना we can learn a very deep lesson, my dear friends. In your life also, in our life also, when we are trying to achieve something, हमने जब कोई अपना गोल सेट किया हुआ है और हम कुछ जब अचीव करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो सबसे पहला ऑब्स्टेकल आता है, अभी आप देखेंगे हनुमान जी के लाइफ में भी ये सबसे पहला ऑब्स्टेकल था, when he is going to meet मदर सीता. So now ये सबसे पहला ऑब्स्टेकल आया कि उनको ना he get exposed to comforts, like that. और उनके जो फोरफादर्स थे, उन्होंने ही दिया था कंफर्ट, मतलब उनके फैमिली रिलेशंस में, like that. उन्होंने कहा प्लीज थोड़ा सा आराम कर लो, एनीवे आपको जाना ही है, आप थोड़ा सा आराम करो और उसके बाद यू कैन गो विद मच स्ट्रेंथ, थोड़ा रिफ्रेश होके उसके बाद आप जाओ. हनुमान जी ने बोला, आई विल नॉट टेक रेस्ट एट ऑल. ही थॉट इन हिज माइंड, उन्होंने उनको नहीं बोला ऐसा, क्योंकि उन्होंने तो बहुत भाव से ऑफर किया था ना. हिज फोरफादर ऑफर्ड दोस केव्स विद ग्रेट लव. नाउ ही कैन नॉट से आई डोंट वांट इट, यू गो टू हेल और forget it. He didn't say it like this. हनुमान जी ने क्या किया ना, एक बहुत इंटेलिजेंट चीज की हनुमान जी ने. जो वो माउंटेन था ना, उसको जाके टच किया और अपने हेड को टच किया, लाइक ऐसे जैसे करते हैं ना, ऐसे टच करके अपने हेड को टच किया उन्होंने, एंड देन ही मूव्स फॉरवर्ड. इसका मतलब उन्होंने वो जो कंफर्ट्स थे ना, उनको रेस्पेक्ट किया, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया, लाइक दैट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्चुअली. Anything which you want to achieve in your life, the first obstacle which will come in your life is, I want to take some rest, I want to have some comfort. And as soon as we take the comfort, we actually lose the focus. आप लोगों ने भी बहुत सारे लोगों ने IIT JEE का किया होगा प्रिपरेशन, IIT JEE and JEE मेंस, JEE एडवांस्ड and all that. तो ये जब हम कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते हैं, तब भी हम देखते हैं सबसे पहला ऑब्स्टेकल क्या आता है? कॉम्प्लिसेंसी, दैट वी गेट अटैच्ड टू कंफर्ट्स. और उससे क्या होता है कि जो हमारा वर्क होता है, हमारा होमवर्क होता है, हमारा गोल होता है, वो अचीव नहीं हो पाता है. तो हनुमान जी सिखा रहे हैं जो सबसे पहला ऑब्स्टेकल है, वो जो हमारे लाइफ में आता है कुछ भी चीज अचीव करने के लिए, दैट इज कंफर्ट्स. एंड हाउ वी कैन गो अबव इट? सिंपली एक्सेप्ट इट आउट ऑफ रेस्पेक्ट, लाइक ही जस्ट टच्ड इट लाइक दिस,
and then he moved forward. In his mind, he was having goal very clear. I am not going to take rest unless I'll achieve my mission, like that. So in our life also, we also should have this attitude actually, that we will going to take rest only after we achieved our mission. And if we get some comforts, we simply touch them with respect, and we only respect them, don't accept them, like that. So ये जो तो उनके लाइफ में, this was the first obstacle which he faced. The second obstacle which हनुमान जी faced was सुरसा डेमनस. एक राक्षसी उनके सामने आई जिसका नाम था सुरसा, like that. अभी स्टोरी कैसा है ना, I'll tell you the story, how the story is. हनुमान जी was going like this, and एक राक्षसी समुद्र से बाहर निकल के आई. उसने कहा, I have got the benediction that anybody who is going to cross this ocean will have to first pass through my mouth. उसको मेरे मुंह में से होके जाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं उसको अलाउ नहीं करती हूँ जाने के लिए, लाइक दैट. तो फिर जो वो थी ना सुरसा, उसने अपना मुंह, बिकॉज दे हैव गॉट मिस्टिक पावर्स, उसने अपना मुंह शक्तियों से थोड़ा बड़ा कर लिया. हनुमान जी ने कहा, ओ दैट यू आर शोइंग मी हाउ बिग यू कैन मेक योर माउथ इज. आई वॉज द वन हु हैज swallowed sun while I was just a child. I will show you how much big I can make my mouth. तो हनुमान जी ने उनके जितना उन्होंने मुंह खोला था उससे भी अपना आकार बड़ा कर लिया मुंह खोलने का. तो जो वो डिमनस थी सुरसा, उसने और बड़ा कर लिया, हनुमान जी ने और बड़ा किया, फिर सुरसा ने और बड़ा किया. तो एक टाइम आया कि जब इन दोनों में ये जो कंपटीशन चल रहा था ना, हु कैन एक्सटेंड हिज माउथ मोर, तो ये जब कंपटीशन चल रहा था, एक टाइम पे सुरसा ने अपना मुंह इतना विशाल कर लिया कि इट वाज नॉट पॉसिबल टू सी कि उसका ऊपर वाला भाग कहाँ पे और नीचे वाला भाग कहाँ पे. इट वाज सो ह्यूज. तो हनुमान जी ने सोचा कि अरे मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, लाइक व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम, माय गोल इज टू गो टू लंका एंड सी मदर सीता. तो मैं क्यों अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाई आई एम शोइंग ऑफ. तो हनुमान जी ने क्या किया, ही बिकेम द साइज ऑफ अ मॉस्किटो, ही एंटर्ड इनटू द माउथ ऑफ सुरसा एंड केम आउट, एंड देन ही स्टैंड विद फोल्डेड पाम्स. ही सेड कि देखिए, आपका शर्त था कि आपके मुंह में जो भी आपके मुंह में से होके जाना पड़ेगा, अभी मैं आपके मुंह में से होके आ गया हूं, तो प्लीज मुझे आगे जाने दीजिए, लाइक दैट. ऐसा देख के जो डिमनस थी सुरसा, वो एक्चुअली बहुत खुश हुई. एक्चुअली उसको लगा कि अरे वाह, ये बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, लाइक दैट. एंड देन ही एक्चुअली गोज अहेड. सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे हम क्या सीख सकते हैं ना, दिस डिमनस सुरसा, इट रिप्रेजेंट्स प्राइड. जो घमंड होता है ना, घमंड, उसको रिप्रेजेंट करती है ये डीमन. नाउ हमारी लाइफ में भी हम देखते हैं, जो दूसरा ऑब्स्टेकल आएगा हमारे लाइफ में, हमारे जो मिशन है उसको अचीव करने के लिए, या जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए, जो दूसरा ऑब्स्टेकल आने वाला है वो है प्राइड. दैट वी मे बिकम प्राउड. और उससे क्या होगा ना, हमारा जो गोल है ना, उसका फोकस लूज हो जाएगा. अभी जैसे हनुमान जी और इसके बीच में सुरसा के बीच में कंपटीशन चल रहा है, देन द गोल दैट आई हैव टू गो टू लंका इज फॉरगॉटन. लेकिन उनको इमीडिएटली याद आता है, अरे ये तो मेरा गोल है ही नहीं, लाइक दैट माय गोल इज टू गो टू लंका. That is why he accepted the role of a humble person. He went inside, came out, and then move ahead, like that. So इससे एक और चीज हम सीख सकते हैं actually. In this world, you will find people who are very of show of nature. जैसे आप देखेंगे, इनफैक्ट आज का तो वर्ल्ड ही पूरा शो ऑफ का वर्ल्ड है. लाइक आप देखेंगे, we have got so many showrooms of dresses and showrooms of everything actually. What to speak of soap? Like I was hearing one devotee, he was in London once, and then he went to the mall in London. तो उनको ना तो एक साबुन खरीदना था, तो वो जब मॉल में गए, वहां के लंदन के मॉल में, देन ही फाउंड 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स, लाइक दैट. अभी वो मॉल में खड़े हुए हैं और उनके पास में इतने सारे ऑप्शंस हैं, लाइक दैट. दैट मींस इन दिस वर्ल्ड नाउ, अभी जो सोप है उसका काम क्या है, जस्ट वी कैन क्लीन अवर बॉडी, लाइक दैट. और किसी को कोई पर्टिकुलर सोप सूट करता है, देन ही कैन टेक दैट, लाइक दैट. लेकिन अभी इतने सारे वेराइटीज के सोप हैं, अलग अलग फ्रेग्रेंस के सोप हैं, अलग अलग टेक्सचर के हैं, अलग अलग कलर के, like that. So that means the world today has become of so much show of nature. तो उससे क्या होता है ना, जो हमारा गोल है ना, we are not able to focus on it, like that. तो इसलिए we also should have a very clear focus on our goal, and we should not be proud at all, and we should not have this show of nature, like that. तो अगर हम ऐसा करेंगे, then we'll be able to get our goal soon, like that. जैसे इसमें एक और बहुत अच्छा पॉइंट आता है, this demon Surasa, it represents the people of the world today, because these people, they want to show off. Like मैं आपको एक बहुत अच्छा वो देता हूँ एनालॉजी. लोग शो ऑफ क्यों करते हैं? Like if you see why people actually show off, that I have this, I have that, I'm so great and all that. People speak about themselves also sometimes. तो ऐसा क्यों है ना? Because people are trying to become somebody else.
they have insecurity with them that because I will not be accepted as I am, अभी मैं जैसा हूं लाइफ में लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. That is why people try to show off and try to become something else. They try to take the face of somebody else because they are insecure in themselves that maybe I'll not be accepted in this world like this. इसलिए आप देखेंगे actually लोग in this world today we have so many cosmetic industry and so many makeups and we have editing software. Like लोग अपना वो लेते हैं photo and then they start to edit it कि how I can become more beautiful like that. So we are trying to become something which we are not. And why we are trying to become? Because we are insecure that people will not accept me as I am right now like that. और उससे होता क्या है ना, हमारा जो गोल है ना उसका फोकस छूट जाता है like that. फिल्टर, हाँ उत्कर्ष प्रभु, व्हाट इज दैट? अच्छा फिल्टर आप बोल रहे हैं, या करेक्ट इस तरीके से. तो इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड एक्चुअली कि हमारा जो जब हम कोई मिशन अचीव करने जाते हैं ना, कोई हमारा गोल है, तो उसमें जो सबसे पहला ऑब्स्टेकल है वो है कंफर्ट. वी शुड नॉट स्टिक टू कंफर्ट. सी अभी ऐसा नहीं है कि रात को सोना ही छोड़ देंगे. वी शुड टेक सफिशिएंट कंफर्ट जो कि रिक्वायर्ड है, लेकिन एक्स्ट्रावेगेंट नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए जिससे हमारा गोल का फोकस छूट जाए लाइक दैट. सो एक है कंफर्ट जो हमारा सबसे पहला ऑब्स्टेकल आएगा. दूसरा है प्राइड एक्चुअली एंड शो ऑफ मेंटालिटी. आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग दैट वन, आई गॉट सो मच मार्क्स देयर एंड ऑल दैट like that. You understand? So the second problem is pride. So we should be stay away from pride and then we should go on to achieve our goal. Now one last demon which comes when Hanumanji is going to Lanka, and that demon is actually Simhika. So now ये जो third demon आई ना, इनका नाम था सिमिका, और ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये एनवी को रिप्रेजेंट करती है. एनवी आप समझते हैं ना, द्वेष, किसी से द्वेष होना like that. या सो इसके लिए भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं फ्रेंड्स. नाउ यू सी उस समय क्या हुआ था जब हनुमान जी जो सुरसा थी उनके मुंह में एंटर किए और बाहर आ गए, एंड देन ही वेंट अहेड. तो अभी आगे चल के ना एक और डीमन आई, एक और लाइक वो आई राक्षसी, उनका नाम था सिमिका. नाउ दिस डीमन सिमिका वाज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी. व्हाई? शी यूज्ड टू कैच पीपल फ्रॉम देयर शैडो. तो उसके पास ये शक्ति थी कि जो लोगों की परछाई होती थी ना, शैडो, उससे शी वाज एबल टू कैच पीपल. तो अभी जैसे हनुमान जी ऐसे फ्लाई कर रहे हैं ओशियन के ऊपर और ऊपर से धूप आ रही है जैसे, तो उनका जो शैडो वो कहां पे आ रहा है? ओशियन पे आ रहा है लाइक दैट. शी वाज एबल टू कैच हनुमान जी फ्रॉम द शैडो लाइक दैट. सो नाउ ये जो डीमन है ना सिमिका, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये एनवी को रिप्रेजेंट करती है. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू सी, आपको पता है हनुमान जी ने इस केस में क्या किया? हनुमान जी he entered in the body of Simika and teared her apart. Now अभी आप देखेंगे जो इससे पहले वाली डीमन थी सुरसा, उनके जस्ट मुंह में हल्का सा एंटर किया और बाहर आ गए, लेकिन इस डीमन को हनुमान जी ने मार दिया एक्चुअली. दिस डीमन सिमिका ही tore her apart. उसमें ऐसे एंटर किए, उसको पियर्स किया और उनको ऐसे फाड़ दिया जो पूरी डीमन थी एक्चुअली लाइक दैट. इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो डीमन है ना सिमिका, इट रिप्रेजेंट्स एनवी. नाउ व्हेन वी हैव एनवी इन आवर लाइफ, वी ऑल्सो कैच द शेडो ऑफ पीपल. या फिर अगर कोई हमसे एनवी करता है तो वो भी हमारी शेडो कैच करने का कोशिश करता है. और एनवी का ना केवल एक ही सोल्यूशन है. वी हैव ओनली वन सोल्यूशन ऑफ एनवी, दैट एनवी शुड बी टोर अपार्ट. अगर हमारे हार्ट में एनवी है, देन वी शुड नॉट फीड एनवी एट ऑल. वी शुड ट्राई टू रिमूव दैट एनवी ऑल टुगेदर. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एनवी होता क्या है असलियत में. एनवी क्या होता है ना, अगर इफ वी सी इन सिंपल टर्म्स, एनवी होता है when we are not happy seeing the progress of others. जब दूसरे लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो उसको देख के ना हमारे हार्ट में जो अनहैप्पीनेस आती है, उसी को एनवी कहते हैं लाइक दैट. कि आपने जैसे हिंदी में एक वो सुना होगा ना कहावत, लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, लोग दूसरे के सुख से दुखी हैं लाइक दैट. People have pain in their life, but they are not so much worried. उनको उससे उतना दुख नहीं है कि ठीक है मेरे जीवन में भी कुछ पेन है, मेरे हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, या फिर कुछ और पेन है लाइक दैट. लोगों को उसका इतना ज्यादा पेन नहीं होता है. That much they are able to experience जब किसी व्यक्ति को सफलता मिलती है. If somebody gets happiness in their life, इसी को एनवी कहते हैं एक्चुअली. And we have to remove this envy from our heart. मतलब इस envy को ना हम वो नहीं कर सकते, entertain नहीं कर सकते हैं. The only solution for envy is we have to remove it from our heart. Then only we'll be focused on our goal. अभी जैसे आप किसी particular goal को achieve करना चाह रहे हैं. Let's say you also want to give IIT JEE exam like that, or JEE Advanced, JEE Mains exam you want to give. You have got few more friends, they are also giving. लेकिन उनके मार्क्स हमसे अच्छे आते हैं तो उससे क्या होता है, हमें envy होता है.
नाउ इस एनवी के कारण क्या होता है ना, इस एनवी के कारण हमारा जो फोकस है ना गोल पे, वो छूट जाता है एक्चुअली. वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर 100% इफेक्टिविटी व्हेन वी आर वर्किंग आउट ऑफ एनवी. लेकिन अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को देख के खुश होते हैं कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज एबल टू गो अहेड सो मच, आई ऑल्सो शुड वर्क सो हार्ड. When we have this attitude and when we don't have envy, then we can actually perform to our full effectivity. आप लोग भी कभी ऑब्जर्व कीजिएगा अपनी लाइफ में, आप जब बहुत खुश होते हैं ना, जब हमारे हार्ट में किसी के लिए एनवी नहीं होता है, तो जो हमारा आउटकम आता है ना, वो हमारा बेस्ट आउटकम होता है. अदरवाइज हम यही सोच रहे थे, उसके उतने मार्क्स आ गए, वो इतना आगे निकल गया, इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, लाइक दैट. सो दैट मीन्स द थर्ड ऑब्स्टेकल विच विल कम, जब आप भी कुछ अचीव करना चाहेंगे लाइफ में, तो जो थर्ड ऑब्स्टेकल आएगा वो आएगा एनवी. और वो एनवी किस में आएगा? हम में आएगा, लाइक दैट. और उसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट वी हैव टू पुट एनवी असाइड. वी कांट एंटरटेन एनवी एट ऑल, लाइक दैट. इस तरीके से तो उसमें आता है कि इस तरीके से हनुमान जी ही फेस 3 ऑब्स्टेकल्स एक्चुअली. एनीबॉडी रिमेंबर व्हाट वाज द फर्स्ट वन? द फर्स्ट ऑब्स्टेकल हनुमान जी फेस्ड, किसी को नाम याद है उसका, माउंटेन का नाम? सर मैनाक पर्वत. यस एग्जैक्टली, मैनाक पर्वत. तो वो एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? व्हाट कंफर्ट. कंफर्ट्स. यस कंफर्ट्स. आई थिंक सुंदरम प्रभु बोल रहे हैं दैट वी शुड गो अ बिट स्लो. आई डोंट नो, हम लोग थोड़ा फास्ट जा रहे हैं क्या? प्रभु, सुंदरम, is it like something you could not understand in between? कुछ ऐसा रहा जो आपको नहीं समझ में आया बीच में, या हम थोड़ा फास्ट निकल गए? नहीं आया समझ में. क्या आया, समझ में आया. अच्छा, एनीवे अगर कुछ इशू है ना, लाइक मुझे भी लगा हाँ कि हम थोड़ा फास्ट गए हैं, तो मे बी आफ्टर दिस कॉल आई विल बी देयर फॉर 5 more minutes. वी कैन अगेन डिस्कस. अगर कोई पॉइंट रह गया है ना जो आपको समझ नहीं आया, वी कैन अगेन डिस्कस दैट. या तो जो सबसे पहला ऑब्स्टिकल था, दैट वाज मैनक पर्वत, जो कि हमारे लाइफ में कंफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, लाइक दैट. सो थैंक यू पूर्णचंद प्रभु. एनीबॉडी रिप्रेजेंट द सेकंड, रिमेंबर्स द सेकंड ऑब्स्टिकल? प्राइड सर, प्राइड. ओके, प्राइड. एंड वो उनका नाम क्या था जो डीमन थी? सूरसा. सॉरी, हु आंसर्ड? कार्तिकेय प्रभु. ओके. यस. या थैंक यू कार्तिकेय प्रभु. एग्जैक्टली. देन इट रिप्रेजेंट्स प्राइड एक्चुअली. तो इसका व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट, कि अगर हमसे कोई प्राइड करता है, या हम किसी से वो करते हैं, घमंड करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? यू वांट टू टेल कार्तिकेय प्रभु? सर नहीं करनी चाहिए, मतलब उसके मतलब थोड़ा सा अपने आप. या तो उस समय अपने आप को वी कैन डू हम्बल आवरसेल्फ, जैसे हनुमान जी ने किया ना. ठीक है भाई, तुम इतने महान हो, तुम इतने बड़े हो, ठीक है, हम तो छोटे सही हैं, लेकिन हम अपना जो गोल है उस पर फोकस करेंगे. देन ही बिकेम द साइज ऑफ अ मॉस्किटो, एंटर्ड एंड केम आउट एंड सेड थैंक यू सो मच, आई हैव फुलफिल्ड योर व्हाट वी से योर कंडीशन, प्लीज अलाउ मी टू गो अहेड, लाइक दैट. तो जो सेकंड ऑब्स्टिकल है वो है प्राइड. उस केस में हमें जो अपना गोल है उस पर फोकस होके, और जो प्राइड, जो दूसरे व्यक्ति का प्राइड है, उसके सामने हम्बल बन के वी कैन गो अहेड, लाइक दैट. मतलब हमारा जो गोल है वो नहीं रुकना चाहिए. सो दैट्स द सेकंड वन. व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड demon which came? Envy. Yes अमित प्रभु, क्या बोल रहे हैं? Envy sir. Envy, या उसका उनको रिप्रेजेंट कौन करती है? त्रिचिटा. Simbika. सिमिका. या Simbic. या आपने तो नाम ही चेंज कर दिया, उत्कर्ष लग रहा है. या एग्जैक्टली. तो उनको रिप्रेजेंट करती है सिमिका, और ये हमारे हर्ट में आती है एक्चुअली. दिस डीमन इट कम्स टू आवर हर्ट, एंड द ओनली सॉल्यूशन फॉर इट इज वी हैव टू टीयर अपार्ट एनवी. मतलब हमें एनवी को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है, इसको जस्ट साइड में करके अपने गोल पे फोकस करना है, लाइक दैट. कि मतलब हमसे कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें उसको देख के एनवी नहीं होनी चाहिए. वी शुड बी हैप्पी एंड वी शुड फोकस ऑन आवर गोल, कि हम लोग कितना कर पा रहे हैं बेस्ट, हमारा क्या बेस्ट है, उसको हम कैसे ट्राई कर सकते हैं, लाइक दैट. So these are the 3 demons which came in the life of Hanuman ji. Just एक चीज मैं last mention करूंगा, time तो हो गया है already, but still just to mention one last thing. It came actually, उसमें आता है जब हनुमान जी का जब लंका विजिट था, तो जब लंका विजिट करके जब वो वापस जा रहे थे, तो उन्होंने ना एक केव में, मतलब ये भी एक आता है पास्ट टाइम, जस्ट यहाँ पे था तो मैं मेंशन करना चाह रहा था, एक गुफा में उन्होंने एक आदमी को देखा जो कि उल्टा लटका हुआ था. रावण ने उस व्यक्ति को उल्टा लटका के केव में, गुफा में टांग रखा था.
तो हनुमान जी आए और हनुमान जी ने देखा तो वो अंदर से आवाज लगा रहा था, अरे कोई मुझे छुड़ाओ, कोई मुझे बचाओ, इस तरीके से काफी चीख रहा था। तो जब हनुमान जी ने सारी लंका में आग लगा के जब वो वापस जा रहे थे, तो उनको उस व्यक्ति की आवाज आई। तो उन्होंने देखा अरे कहाँ से आवाज आ रही है, तो उन्होंने इधर उधर देखा तो एक गुफा थी, उसमें से आवाज आ रही थी। और असलियत में जब उन्होंने अंदर जाके देखा ना, तो एक व्यक्ति को बांध के उल्टा टांग रखा था। तो उसने उसने बताया, तो हनुमान जी ने पूछा अरे आप कौन हो, उन्होंने उसको हटाया, उसको छुड़ाया। तो फिर ऐसा आता है, लाइक इट कम्स अ डिस्क्रिप्शन दैट दैट पर्सनैलिटी वाज शनिदेव। जैसे आप लोगों को भी पता होगा ना, इन इंडिया वी हैव अ डीटी ऑफ शनिदेव। जैसे शनिवार को एक दो व्यक्ति आते हैं ना कुछ मोहल्ले में, कुछ तेल लेके जाते हैं, लाइक दैट, कि ये उनके लिए लेके जा रहे हैं शनिदेव के लिए, लाइक दैट। तो नाउ ये जो व्यक्ति है ना शनिदेव, दिस ऑल्सो दे इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ प्लैनेट, जो एक शनि ग्रह होता है ना, उसको भी ये रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दैट। और ऐसा बोलते हैं, लाइक जनरली सम एस्ट्रोलॉजर्स एंड ऑल दिस से दैट व्हेन समबडी हैज गॉट शनि हैवी इन हिज कुंडली, जो हमारी पर्टिकुलर कुंडली होता है उसमें अगर शनि हैवी हो जाता है, देन वी हैव गॉट वेरियस प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, ऐसा बोलते हैं, मतलब like that it is. So now it came in like Ramayana when Hanuman ji was going back now in that cave, in that वो जो थी गुफा, उसमें उन्होंने देखा उस व्यक्ति को, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने बताया कि मैं तो शनिदेव हूँ, और मुझे रावण ने ऐसे बांध के यहाँ पे उल्टा वो लटका रखा था। तो फिर जो वो शनिदेव हैं वो हनुमान जी से बोलते हैं, लेकिन असलियत में मैं एक देवता हूं, तो आपको अगर मेरे से कुछ मांगना है तो आज आप मांग लो, मैं आपकी सारी विश पूरी कर सकता हूं। तो हनुमान जी सोचते हैं कि दिस पर्सनैलिटी ही इज नॉट एबल टू कॉन्कर रावणा, मतलब इससे ज्यादा शक्तिशाली तो रावणा है, ये मुझे क्या विश फुलफिल करेगा। तो हनुमान जी लेकिन फिर भी कुछ मांगते हैं। हनुमान जी एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं उनसे। हनुमान जी बोलते हैं कि सी शनि, ऐसा ऐसा मेरे सुनने में आया है कि आप जिसके पीछे भी लग जाते हो उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, लाइक दैट। आप मेरे से एक वो कीजिए, यू डू मी अ प्रॉमिस, एनीबडी हु चेंट्स द नेम्स ऑफ लॉर्ड राम, यू विल नॉट कम इन देयर कुंडली एट ऑल, लाइक दैट। इस टाइम में, आने वाले टाइम में भी अगर कोई व्यक्ति भगवान राम का नाम चेंट करेगा, देन यू विल नॉट कम नियर टू हिम ऑल्सो, लाइक दैट। ऐसा बोलते हैं हनुमान जी उनको। एंड देन ही टेक्स अ बेनेडिक्शन फ्रॉम शनिदेव कि जो भी व्यक्ति राम का नाम चेंट करेगा, भगवान राम का नाम का चेंटिंग करेगा, उसके ऊपर वो कभी भी इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे, लाइक दैट। तो ऐसा बोलते हैं कि दोज हु आर द लाइक द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, इन देयर लाइफ ऑल द ऑब्स्टिकल्स आर रिजॉल्व्ड एक्चुअली। जो ये जो आसपास की ऑब्स्टिकल्स भी होती है ना, जो कि उनके कंट्रोल में नहीं होती है, दे ऑल्सो आर रिजॉल्व्ड सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड, लाइक दैट। सो थैंक यू सो मच। एक मेरा लास्ट स्लाइड है जस्ट, या तो थैंक यू का ये स्लाइड है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। Maybe I'll stop here. In case you have some question, in case you want to share something, we can have it right now. For others, I am officially closing the meeting. And yeah, I think Pawan Prabhu wants to say something. Yeah, sir. Thank you, sir. Thank you so much for explaining beautifully the life lessons and emphasizing how beautifully the name of the Lord, how Hanumanji was able to do everything because he was chanting. Yeah. Whenever he gets difficulty, he just remember the name of the Lord and he gets all the powers to do everything. And then beautifully explained the 3 obstacles: comfort, proud, and envy. Just wanted to say, sir, can you take the doubts after announcing the winners? Yeah, sure. Thank you, sir. So it's time for winners. I'm just sharing the screen. Sir, is it visible? Yes. Pawan, it's visible. Yeah. Thank you, Karthik. Any guesses from anyone? Who are the winners? Hardik. Okay, let's see. ऐसा होता है, जो जनरली जो बोलते हैं वो भी निकलते हैं विनर्स कभी कभी। Yes, sir. तो मैंने तो दिया ही नहीं था क्विज में। अच्छा, ओके। Okay, sir. Yes, Pawan Prabhu, we are waiting. So our second winner is Amit Prabhu. Hari bol. हरी बोल।
Amit Pru, okay, Amit Pru. Yeah, he's Yes, there sir. now in the call. Yes, sir. He is in the call. Yeah. And ultimately, we have our first winner. So, any guesses for this? Any guesses, huh? I don't know. Okay, sir. So, let's see. Oh, Poonchand Pru. Hari bol. Hari bol Hari for Poonchand bol. Prabhu. Hari bol. Wonderful, wonderful. Yes, sir. Just you are saying that who says that is winner. Yeah, actually, it's the aspect of humility that we are able to see good in others. और उसका इफेक्ट क्या होता है ना, because we are in this nature of selflessness. तो उसका रिजल्ट क्या होता है, that we actually stands to benefit when we are very humble now at time. Yeah, and surely we will send some gifts that will surprise what will be the gift, but it is sure that you will receive some gift, and that will be arranged by Akshay Prabhu's choice. And thank you so much for your enthusiastic participation, and hope you will again give your enthusiastic response in our quizzes, and keep inspired, and meet at next Sunday. Over to you, Yeah, sir. yeah, friends, just एक चीज mention करना था. I think next weekend we'll have the class, और फिर 4th को we are having this festival, no? दीपावली Yes, is there. तो उससे पहले भी हम एक बहुत स्पेशल रखेंगे सेशन, जैसे आज का था ना, from the life of Hanuman ji. We'll try to take something very inspirational, very special from Ramayana, like that. Chalo, thank you so much. Hare Krishna. Maybe just one last, if devotees can switch on their videos एक बार last time भी जाने से पहले, अगर आप लोग के लिए है possible, then you can please switch on the video. I think starting में इतने सारे लोग नहीं थे ना, उत्कर्ष प्रभु वगैरह ये सब तो बाद में ही आए. आदर्श प्रभु भी नहीं थे स्टार्टिंग में जो हमने वीडियो ऑन किया था. और कौन थे? सौरभ was not there and Shivam was not there, correct? Saurabh Prabhu was there, sir. अच्छा, he was there. Put on the video. हरे कृष्णा. उत्कर्ष प्रभु भी छत पे घूम रहे हैं. ओके ओके. Sundaram Prabhu, Ambuj Prabhu, Saurabh Prabhu, okay. Ashish Prabhu is also there. Welcome, Ashish Prabhu. Thank you. I think आपने थोड़ा बीच में ज्वाइन किया. Shivam Prabhu is also there, okay. I think आप लोग कुछ लोग तो उधर आए भी थे ना, हम लोग वहां पे शायद मिले होंगे ना कैंप में. करेक्ट करेक्ट. और कौन है? आदर्श प्रभु नहीं दिखाई दे रहे हैं वीडियो पे. आदर्श पांडे प्रभु. आपका हेल्थ कैसा है अभी? आदर्श प्रभु का थोड़ा हेल्थ वहां पे खराब हो गया था. चलो ठीक है प्रभु, थैंक यू. या आदर्श प्रभु आ गए. क्लीन चिट. हाँ अभी अच्छे हैं प्रभु आप? योर हेल्थ गुड? अभी ठीक है. अच्छा चलो, आपको ठीक देख के मैं भी काफी ठीक हो गया फिर. चलो अच्छा है प्रभु. ठीक है प्रभु. एक्चुअली वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज ट्राई टू चैंट एटलीस्ट 1 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र. वो आपका होमवर्क रहेगा हर रोज का. एटलीस्ट 1 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र यू कैन चैंट, एंड यू कैन ट्राई टू लर्न दोस 4 श्लोकास जो हमने स्टार्टिंग में किए थे ना. उसमें से एटलीस्ट एक श्लोक आप ट्राई कर सकते हैं इस हफ्ते में याद करने का. फिर हम नेक्स्ट वीक पे उसको लेंगे. जिसने भी याद किया है यू कैन जस्ट लाइक रिसाइट फॉर ऑल ऑफ अस. तो ये 2 आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है? Thank you, sir. I will send all the 4 slokas. You can just remember. Yeah, whenever you got can time. again send on the group. Pawan. Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है friends, thank you so much. Thank you for tolerating me so long. Hare Krishna. So I'll just stop here. Maybe अगर आपको किसी को कुछ बोलना है, I'm there for 5 more minutes. If you want to say something, you want to ask something from the discussion, या फिर कहीं और से कुछ पूछना है, तो I'm there for 5 more minutes. We can discuss and others can just continue. Thank you.